आज की वीडियो में हम चैप्टर 8 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एंटिटी इज एलिजिबल टू इन्वेस्ट इनटू पीएमएस? प्रोप्राइटरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी ही एलिजिबल है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन अगेन है, द फॉलोइंग एंटिटीज कैन इन्वेस्ट इन पीएमएस? इंडिविजुअल्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। The minimum investment required for PMS investment is dash 5 lakh, 25 lakh, 50 lakh, 1 crore. तो कितनी है? 50 lakh. Option C. Dash is the central national agency responsible for receiving, processing, analyzing, and disseminating information related to suspicious financial transaction to enforce agencies. FIUIND, SEBI, RBI, CBI. तो सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनके साथ कौन डील करता था? FIUIND, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ऑप्शन ए। इन द गिब्स स्टैंडर्ड्स, व्हेन प्रेजेंटिंग नेट ऑफ फी रिटर्न्स, द फर्म मस्ट डिस्क्लोज डैश इफ मॉडल और एक्चुअल फीस आर यूज्ड, अदर फीस दैट आर डिडक्टेड along with management fees and transaction cost, the methodology of calculation used, all of the above। तो ये सारी ही चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Once the joint account for PMS is opened, the addition or deletion of holders of the demat account dash can be done with the consent of all holders, cannot be done, can be done by portfolio manager since POA is registered, none of the above। तो ऑप्शन ए, कैन बी डन विद द कंसेंट ऑफ ऑल होल्डर्स। अगर यही डीमेट अकाउंट होता उस केस में ये अलाउड नहीं होता, लेकिन पीएमएस का अकाउंट है तो सारे अकाउंट होल्डर के कंसेंट से चेंज किया जा सकता है। Identify the incorrect statement with respect to fees paid by the client to the portfolio manager। Incorrect statement बतानी है। The client does not have to pay fees for services which are outsourced by the portfolio manager. Each service type wise fee payable is agreed upon. Fees payable by the client is agreed upon in the initial agreement. Performance fee charged by portfolio manager is completely negotiable। तो सर्विस वाइज फीस हमारी एग्री होती है क्लाइंट में, ये हमारी ट्रू है। फीस पेबल बाय क्लाइंट ये भी एग्रीड होती है, और जो भी परफॉर्मेंस फी है उसकी परसेंटेज हम नेगोशिएट कर सकते हैं। 5, 10, 15, 20 कितनी चार्ज करनी है हम नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये भी ट्रू है। बची क्या? द क्लाइंट डज नॉट हैव टू पे फीस फॉर सर्विसेज विच आर आउटसोर्स बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर। तो ये हमने देखा था, टैक्सेशन, ऑडिट, ये सारी क्या है? आउटसोर्स प्रोफेशनल फी है, ये क्लाइंट को ही बियर करनी पड़ती है। तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन ए। Mr. X has invested his funds with the PMS firm for 5 years. He now wants to withdraw his funds. The exit load charged by the portfolio manager will be dash 1%, 2%, 2.5%, 0%। तो हमारे क्या थे? 5 ईयर्स के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता था, तो 0%। क्या थे हमारे? फर्स्ट ईयर में 3, सेकंड में 2, थर्ड में 1, 3 के बाद कोई भी नहीं, तो 5 ईयर्स बाद निकाल रहा है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनआरआईज डीमैट अकाउंट। The credit and debits from the NRI Demat account need to be permitted by authorized dealers. A NRI is free to open a Demat account with any depository participant in India. A NRI need not take any permission from RBI to open a Demat account. All of the above। तो हमने देखा था डीमेट अकाउंट ओपनिंग के रिगार्डिंग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये तो ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो क्रेडिट और डेबिट के टाइम पर उन्हें परमिशन लेनी पड़ सकती है ऑथोराइज डीलर से, तो ये भी ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। A portfolio manager can charge operating expenses which will be as a percentage of the client's average daily asset under management. What will be the threshold of these charges? 0.05 per annum, 0.5 per month, 0.5 per quarter, 0.5 per annum। Option D, 0.5% per annum। On what basis are the various fees and charges that are going to be paid by the investor levied? As per the agreement between the investor and the portfolio manager, as per the guidelines of SEBI Regulation 2020, the investor has no say in this। तो जो भी चार्जेस होते हैं वो इन्वेस्टर और पोर्टफोलियो मैनेजर के बीच में एग्रीमेंट से होते हैं, इन्वेस्टर का इसमें पूरा पूरा से होता है। तो केवल ये स्टेटमेंट ही ट्रू है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ओनली ये, ऑप्शन ए। द डिस्क्लोजर्स विच आर मेड बाय पोर्टफोलियो मैनेजर टू द रेगुलेटर्स आर डैश डायरेक्शनल, ऑप्शनल, मैंडेटरी, वॉलंटरी। तो ये मैंडेटरी होते हैं। ऑप्शन सी, मैंडेटरी।
A microfinance self-help group wanted to invest rupees 1.5 crore in a PMS. Should the PMS accept or reject the offer? The offer has to be rejected as a self-help group is not eligible to invest in a PMS. Accept the offer by creating a trust and include the PMS as the main trusted. Correct answer is option A. A self-help group is not eligible to invest in a PMS. Company has gone public, but there is a shortfall of 10,000 shares to complete the minimum subscription rule. A client of a PMS distributor wants to invest in these shares but does not have funds to buy the complete 10,000 shares. Identify what should the PMS distributor do. The PMS distributor should arrange for a bank loan to finance the shortfall. The PMS distributor should lend his own money to cover the shortfall. The PMS distributor should pay on the client's behalf to cover the shortfall. None of the above. करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव. कंपनी अभी अभी पब्लिक गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका शेयर अभी लिस्ट नहीं है, वो अनलिस्टेड है. तो पोर्टफोलियो मैनेजर अनलिस्टेड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. Which of these is not included in the agreement between the portfolio manager and the client? The period of PMS contract, the provisions related to early termination of the PMS contract, the procedure of settling the client's account, the various portfolio scheme which the portfolio manager manage. तो पीरियड हो गया, प्रोविजंस हो गए, प्रोसीजर हो गया, ये सारे तो इंक्लूड होते हैं. क्या इंक्लूड नहीं होता? वेरियस पोर्टफोलियो स्कीम्स विच द पोर्टफोलियो मैनेजर मैनेजेस. ऑप्शन डी. अंडर विच चैप्टर ऑफ सेबी रेगुलेशन 2008 कैन एक्शन बी टेकन अगेंस्ट डिफॉल्टिंग पोर्टफोलियो मैनेजर्स? चैप्टर 1, 3, 4, 5. ये चैप्टर 5 के अंदर आता है. ऑप्शन डी. Identify the additional documents that have to be collected for the KYC of non-resident investors. Certified true copy of birth certificate, certified true copy of overseas address, certified true copy of passport. तो पासपोर्ट और ओवरसीज एड्रेस चाहिए होता है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता. तो केवल बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन सी, ओनली बी एंड सी. एज पर सेबी रेगुलेशन ऑन फी एंड चार्जेस, व्हाट इज द हाई वाटरमार्क फॉर ए पीएमएस स्कीम? हाई वाटरमार्क क्या होता है? हाई वाटरमार्क इज द हाईएस्ट वैल्यू पोर्टफोलियो अकाउंट हैज रीच्ड. High watermark is the threshold of portfolio value beyond which the performance-based fee can be charged by the portfolio managers. तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. A reputed PMS has 5 group companies. Identify which among the following is the best practice for disclosing these to the client. The PMS firm has to disclose about the group companies only if there is a conflict of interest. The PMS firm need not disclose about the group companies. The PMS firm has to disclose about the group companies. The PMS firm need not disclose about the group companies as they are not above 10 in number. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. पीएमएस फर्म को तभी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है ग्रुप कंपनीज के बारे में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है. आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट with respect to an investor seeking to engage a portfolio manager. There is no need for an investor to understand anything about investment styles. An investor should pay attention to the major provisions of the investment contract. An investor has to depend on the distributor's advice on the choice of a portfolio manager. An investor only has to place trust in the portfolio manager's approach to investing. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. एन इन्वेस्टर शुड पे अटेंशन टू द मेजर प्रोविजंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें होंगी, इन्वेस्टमेंट भी, परफॉर्मेंस भी, सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग होगी. मिस्टर एक्स इनिशियल कंट्रीब्यूशन इज ₹5 crore, which then rises to 5 crore 40 lakhs in the first year. Therefore, a performance fee will be payable on 40 lakhs. Is this statement true or false? तो परफॉर्मेंस फी किस पर लगती है? हम हाई वाटर मार्क के ऊपर जितना गए, अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी 5 करोड़ थी और 5.40 पहुंच गए, 40 लाख पर हमें परफॉर्मेंस फी देनी होगी. ऑप्शन ए ट्रू. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस फी बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर. द परफॉर्मेंस फी इज चार्ज when the portfolio value exceeds the previous high watermark. The performance fee is charged only when the rate of return on a portfolio exceeds a hurdle rate. Both of the above, none of the above. Correct answer है option C, both of the above. Which of these expense can be included under operating expense? Courier charges, audit fees, fees for portfolio manager service, brokerage charges.
ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है? जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए लगता है। कुरियर चार्जेस, ऑप्शन ए। विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी फॉर इन्वेस्टमेंट इन पीएमएस एज पर सेबी रेगुलेशंस? आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेविंग बैंक पासबुक, पासपोर्ट। पैन कार्ड मैंडेटरी है, ऑप्शन बी। विच ऑफ दीज रिस्क आर नॉट रिलेटेड टू द रिस्क फैक्टर्स that are to be revealed as part of the disclosure document given to the client? The risk arising due to investment approach of PMS, the business risk of the group companies of the PMS, the risk arising due to non-diversification, market risk. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द बिजनेस रिस्क ऑफ द ग्रुप कंपनीज ऑफ द पीएमएस। इनको डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है। डैश इज वन ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉस्ट टू द इन्वेस्टर व्हाइल एंगेजिंग इन ए पीएमएस? रजिस्ट्रार फी, ऑडिटर फीस, ब्रोकरेज चार्जेस, नोटरी चार्जेस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नोटरी चार्जेस। ये चार्जेस गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं स्टैट्यूटरी कॉस्ट। द पोर्टफोलियो मैनेजर एंड द क्लाइंट एग्रीड अपॉन ए हर्डल रेट ऑफ 15% फॉर चार्जिंग द परफॉर्मेंस फी ऑफ 30%। हर्डल रेट कितना है? 15%। परफॉर्मेंस फी कितना है? 30%। इफ द क्लाइंट कंट्रीब्यूशन वाज 5 करोड़ एंड द फंड जनरेटेड ए रिटर्न ऑफ 25% इन दैट ईयर, हमारी रिटर्न कितनी आई? 25% आई। व्हाट इज एलिजिबल परफॉर्मेंस फी? तो हमारी रिटर्न आई 25%, हर्डल रेट कितनी थी? 15%। तो पोर्टफोलियो मैनेजर ने कितना ज्यादा रिटर्न दिया? 10% ज्यादा रिटर्न दिया। तो परफॉर्मेंस फी कितनी लगेगी? परफॉर्मेंस फी कितनी थी? 30% थी। तो हमारी 30% लगेगी। इस पर लगेगी जो हमें एक्स्ट्रा रिटर्न मिला और जो अब तक था हमारा हाई वाटर मार्क था। हमारा फर्स्ट ईयर है तो हाई वाटर मार्क कितना होगा? जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। तो 10% ऑफ 5 करोड़, यानी कि हमारी परफॉर्मेंस कितनी थी? 30%। 30% ऑफ 10% ऑफ 5 करोड़, ऑप्शन ए। As per Chapter 5 of SEBI Regulation 2008, the period for which a portfolio manager would be prohibited from taking any new assignment in case of default is dash. 2 years, 5 years, 7 years, unspecified. तो कितने टाइम के लिए होगा? ये सेबी के ऑर्डर में बताया जाएगा, कोई प्री डिफाइंड नहीं है। तो ऑप्शन डी, अनस्पेसिफाइड। What type of action can be taken by SEBI in case of default by a portfolio manager? It can prohibit the portfolio manager from launching a new scheme. It can issue a warning to the portfolio manager. It can suspend the certificate of registration of the portfolio manager. तो ये सारे ही काम कर सकता है। तो all of the above, ऑप्शन डी, all A, B, C. A client suffered a loss that is greater than the value of asset with a PMS. How is the client protected in such a case? 100 रुपए इन्वेस्ट किए, लॉस हो गया 200 रुपए का, तो उस केस में क्लाइंट कैसे प्रोटेक्टेड रहेगा? इन केस ऑफ ए नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर, द क्लाइंट विल बी कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। नॉन डिस्क्रिशनरी क्या होता है? जिसमें क्लाइंट खुद डिसीजन लेता है, पोर्टफोलियो मैनेजर बस एग्जीक्यूट करता है। डिसीजन किसके होते हैं? क्लाइंट के। तो अगर क्लाइंट का डिसीजन है तो जो लॉस होगा तो वो भी क्लाइंट का ही होगा, चाहे कितना भी हो। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, इसमें प्रोटेक्ट नहीं होगा। इफ द एग्रीमेंट कंटेन्स ए लिमिटेड लाइबिलिटी क्लोज, देन द क्लाइंट इज प्रोटेक्टेड इन केस ऑफ डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर। डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर क्या होता है? जिसमें डिसीजन पोर्टफोलियो मैनेजर लेता है। उस केस में पहले से ही अगर क्लोज डला हो कि क्लाइंट की लाइबिलिटी उतनी ही होगी जितना उसने इन्वेस्ट किया, तो उस केस में प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। व्हाट डज अपफ्रंट मीन अंडर द पीएमएस रेगुलेशंस? अपफ्रंट का मीनिंग क्या है? The portfolio manager will not charge any fees first and then calculate the total returns generated on the fund. A portfolio manager will not deduct his fees before he distributes the benefits to the client. A portfolio manager will not charge any amount of performance fee as wished. A portfolio manager will not charge any fees at the beginning before providing any services to the client. अपफ्रंट का मीनिंग है कि जब तक आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं की तब तक आप क्लाइंट से कोई फी चार्ज नहीं कर सकते। ऑप्शन डी, a portfolio manager will not charge any fee at the beginning before providing any service to the client. Which of these information about client grievances need to be posted to the regulator? Nature of complaint, number of complaints, any other particular if required. ये सारी चीजें देनी होती है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ए, बी, सी। Mr. X is a promoter of a yet to be registered company. He wants PMS services for his company and want to invest 3 crores. What should PMS firm do? The PMS firm should inform the promoter that he is ineligible for PMS services. The PMS firm should consider the promoter as an individual and take him as an individual client. The PMS firm should ask the promoter to revisit
after the registration of the company is done, the PMS firm should inquire and know in what capacity does the promoter want to invest the fund. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. द PMS firm should ask the promoter to revisit after the registration of the company is done. From 2015, all Indians and NRIs have to submit an additional declaration to register for PMS services. What is the name of this declaration? 2015 से सबको एक एक्स्ट्रा डिक्लेरेशन करनी पड़ती है. उसका क्या नाम है? FTK, FETK, FITK, FATK. ये फटका होती है. फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट. ऑप्शन डी फटका. फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट एंड कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड CRS. ये दो डिक्लेरेशन करनी होती है. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CKYCR? सेंट्रल KYC रजिस्ट्री, सेंट्रल KYC रजिस्ट्रेशन, सेंट्रल KYC रिकॉर्ड्स, कंप्लीट KYC रिकॉर्ड्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेंट्रल KYC रजिस्ट्री. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CERSAI? सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, asset reconstruction and security interest of India. Central registration of securitization, asset recommendation and security interest of India. Central registration of security, asset registration and security interest of India. Central registration of securitization, asset rebalancing and security interest of India. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, asset reconstruction and security interest of India. A PMS has changed its main office address. This should be informed to Financial Intelligence Unit India, SEBI, clients. तो केवल सेबी और क्लाइंट को इन्फॉर्म करना जरूरी है. FIU को कौन सी इन्फॉर्मेशन जाएगी? कोई भी सस्पेक्ट ट्रांजैक्शन होती है वही. तो केवल बी और सी, यानी कि हमारा ऑप्शन सी, ओनली बी एंड सी. आइडेंटिफाई विच ऑफ दिस इज नॉट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन ए PMS. कौन सी PMS में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट नहीं है? फ्रैंकिंग चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस, लिस्टिंग फी, रजिस्ट्रार फी. तो फ्रैंकिंग, ब्रोकरेज और रजिस्ट्रार ये तो लगते ही हैं. क्या नहीं लगता? लिस्टिंग फी. ऑप्शन सी. दिस इज नॉट ए कंपनसेशन विच द इन्वेस्टर वुड बी पेइंग फॉर एनी एंटिटीज प्रोफेशनल सर्विस. इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फी, स्टैंप ड्यूटी, कस्टडियन फीस, ऑडिटिंग फीस. तो जो हमारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है ये भी प्रोफेशनल है, कस्टडियन भी प्रोफेशनल है, ऑडिटर्स भी प्रोफेशनल है. तो बच गया क्या? ऑप्शन बी, स्टैंप ड्यूटी प्रोफेशनल फी नहीं है, ये गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई कॉस्ट है. When a custom benchmark is used by a PMS firm, then which of the following information need not be provided as per GIPS, Global Investment Performance Standards? Calculation methodology, weight of the securities in the benchmark, risk return matrices of the benchmark, components of the benchmark. तो कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी, वेट्स, कंपोनेंट्स ये सारे तो डिस्क्लोज करने जरूरी होते हैं. क्या जरूरी नहीं होता? ऑप्शन सी, रिस्क रिटर्न मैट्रिसेस ऑफ द बेंचमार्क. लास्ट में आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है. ये हमारा हाई वाटर मार्क और हर्डल रेट पर बेस्ड है. एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड ₹1 करोड़ इन ए PMS. 1 करोड़ इन्वेस्ट किया. हर्डल रेट एग्री हुई 10%. पोर्टफोलियो 1.30 करोड़ पहुंच गया फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 1.1 करोड़ और थर्ड ईयर में 1.6 करोड़. द परफॉर्मेंस फी इज एप्लीकेबल फॉर विच ईयर्स. किस ईयर के लिए परफॉर्मेंस फी एप्लीकेबल रहेगी? फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के लिए, फर्स्ट एंड थर्ड ईयर के लिए, सेकेंड एंड थर्ड ईयर के लिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ईयर्स के लिए. 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, हर्डल रेट 10% एग्री हुई, फर्स्ट ईयर में 1.3 करोड़ पहुंच गया, सेकंड में 1.1 और थर्ड में 1.6. तो कौन कौन से ईयर में परफॉर्मेंस फी एप्लीकेबल रहेगी? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा. थैंक यू गाइस.